Hi guys, this is Harpreet Singh. Welcome back to the channel Mr. Singh Education. Welcome to the Indian polity classes for all the competitive exams. Guys, here you get political notes which are beneficial for your competitive exams. So guys, last class ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, 17 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ which act provided for the establishment of the supreme court। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 1781 ਕੋਲਕਾਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਬੰਬੇ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਦਿੱਲੀ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਕੋਲਕਾਤਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਐਕਟ ਗੇਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੈਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੇ, ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਟ ਆਫ 1786। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਟ ਆਫ 1786 ਵਾਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਐਕਟ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਅਨਦਰ 20 ਈਅਰਸ ਫॉर ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਐਕਟ 1861। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ
फर्स्ट ऑप्शन जी है चार्टर एक्ट 1833 की सही आंसर है, क्योंकि जोड़ा है चार्टर एक्ट 1833 की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की है इंट्रोड्यूस किया गया सी अपने देश के जी पोस्ट में लैके आंदा गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही की जोड़ा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जोड़ा है मन्निया जान लग्या, मतलब कि उन्होंने जोड़ा है पोस्ट दी गई। अगे नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है हू वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हुण अपने देश का पहला गवर्नर जनरल कौन सी। पहली ऑप्शन है विलियम बेंटिक, दूसरी ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरी ऑप्शन है लॉर्ड कनिंग, चौथी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सब तो पहली ऑप्शन जी है अपने वास्ते करैक्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक जोड़े है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जोड़े सब तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है अपने देश के लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले आप नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। विच एक्ट इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसिज इन इंडिया। किहड़े एक्ट के थ्रू जोड़ा है सिविल सर्विसिज में अपने देश के लैके आंदा गया। वैन वॉज द सिविल सर्विसिज इंट्रोड्यूस्ड। पहली ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, दूसरी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, तीसरी ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चौथी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इन वास्ते की है अपनी जी सैकेंड ऑप्शन है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853 की है करैक्ट आंसर है, क्योंकि चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू ही की जोड़ा है भारत देश के ब्रिटिशर्स ने की सिविल सर्विस की है अपने देश के इंट्रोड्यूस किया स्थापित किया। एक मैकुलर कमेटी हैगी मैकुलर कमेटी ने की है जोड़ा है अपने देश के सिविल सर्विसिज जोड़ा है अगे होर वधाया। अगे गल करते हैं हू वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड विच एक्ट इंट्रोड्यूस दिस पोस्ट। हुण पुछ रहे हैं एक क्वेश्चन पुछ रहे हैं सब तो पहला की पूछा उन्होंने हू वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, अपने भारत देश का पहला वाइसरॉय कौन सी। तो फिर उन्होंने पूछा भी किहड़े अधिनियम किहड़े एक्ट के थ्रू जोड़ा है इनू जोड़ा है भारत के एक पोस्ट का दर्जा दिता गया। तो सब तो पहली ऑप्शन है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तीसरी ऑप्शन है लॉर्ड कनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हुण की है इन जोड़ा है अपना की है सी ऑप्शन लॉर्ड कनिंग की है भारत का पहला वाइसरॉय है। इनू किस अधिनियम के थ्रू इनू की है एक पोस्ट का दर्जा दिता गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट नू की है दर्जा दिता गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया का नाम ही चेंज किया। अगे गल करते हैं नैक्सट जोड़ा है अपना क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833 वाले की जोड़ा उन्होंने पूछा है किहड़े स्टेटमेंट सही है ने उनके बारे आप आंसर देवांगे। सब तो पहली स्टेटमेंट दी है इट प्रोवाइडेड फॉर द टैरेटरीज ऑफ इंडिया टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ द क्राउन। ताकि ये जोड़ा है इन्होंने पूछा भी जी टैरेटरीज है भारत के जिन्नियां भी टैरेटरीज है वो कि क्राउन के नाम से की चलाइया जाएगियाँ, मतलब कि राजे महाराजे के नाम से। दूसरी ऑप्शन गल करती है ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूरोपियन इमीग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज एंडेड। उनकी जोड़े सारिया रिस्ट्रिक्शंस जी लगियां सी यूरोपियन इमीग्रेशन ते एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ते मतलब कि प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर कर सकते वो सारिया की खत्म कर दी है। थर्ड स्टेटमेंट की है नो इंडियन वॉज टू बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कलर बर्थ डिसेंट एंड अदर्स। तो उनकी थर्ड स्टेटमेंट के उन्होंने पूछा गल कही गई है भी जोड़ा है किसी भी भारतीय की है भी काम के पक्षों जोड़ा है ना नहीं की जाएगी उनके की बर्थ के बेस पर उनके रिलीजन के बेस पर उनके जोड़े है डिसेंट तो कलर के बेस पर। ताकि ये आप दसना है भी कि है स्टेटमेंट सही है। हाउ मैनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर करैक्ट। तो इन्होंने कि स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए गल करती है ओनली 1, ऑप्शन बी गल करती है ओनली 2, ऑप्शन सी गल करती है ओनली 3 एंड ऑप्शन डी गल करती है नन। नन मतलब नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन ओनली 1 नहीं लिखा तो तुम कि 1 जोड़ा है समझ लेना। तो हम की जोड़ा है अपने वास्ते करैक्ट स्टेटमेंट हैगी वो हैगी ओनली 3। सी ऑप्शन अपने वास्ते करैक्ट है क्योंकि जोड़ा है चार्टर एक्ट 1833 की किया गया भी हरेक परसन की है एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकता है कंपनी रूल के अंडर। अगे आप नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव
ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਬਜਟ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਦੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858, बी ऑप्शन हैगी है सैकेंड ऑप्शन हैगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी ऑप्शन हैगी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ऑप्शन फोर्थ हैगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जी पंजवीं ऑप्शन ये दी गई होगी नन ऑफ दीज, मतलब कि नन ऑफ अबव, इन्होंने चार ऑप्शन के कोई भी नहीं। तो इन्होंने चार ऑप्शन की है लैजिसलेटिव काउंसिल्स नूं मतलब कि विधान परिषदां नूं की जिहड़ा हैगा सी बजट के उत्ते डिस्कस करने वास्ते की है अधिकार दिता गया, वो दिता गया सी ऑप्शन अपना इत्थे की करैक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 दे विच की है जिहड़ा है लैजिसलेटिव काउंसिल नूं की एक अधिकार दिता गया कि वो आदि काउंसिल दे विच जिहड़ा है बजट नूं की है डिस्कस कर सकते हैं। आई होप गाइज तुहानूं इहदे बारे पता लग गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वल वधदे हैं। नैक्सट क्वेश्चन गल करदा है द पार्लियामेंटरी सिस्टम इन इंडिया बिगन विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो हम पार्लीमेंटरी सिस्टम किस एक्ट के थ्रू किया अपने देश के बिगन मतलब शुरुआत हुई पार्लीमेंटरी सिस्टम की। पहली ऑप्शन हैगी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दूसरी ऑप्शन हैगी चार्टर एक्ट 1853, तीसरी ऑप्शन हैगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चौथी ऑप्शन हैगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इतने कि अपने जोड़ा बी ऑप्शन करैक्ट हैगी चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू की जोड़ा सी पार्लीमेंटरी सिस्टम नूं भारत दे विच इंट्रोड्यूस कर लिया गया। जिन्होंने नहीं पता भी की इनके प्रोविजनस की है तुसीं जिहड़े है 5th 6th जिहड़े है लैक्चर तुसीं देख सकते हो। अगे नैक्सट क्वेश्चन है थ्रू विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो हुण की पहला की है गवर्नर जनरल जिहड़ा बंगाल का गवर्नर है उन्होंने पहला गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता सी, उन्होंने कला की है गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता सी। बट फिर की लेटर ऑन की उहदे विच जिहड़ा हैगा सी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहन लग्या जान लग्या। तो किस एक्ट के थ्रू कहा जान लग्या तो उनके बारे पूछा गया। तो सब तो पहली ऑप्शन हैगी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरी ऑप्शन हैगी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तीसरी ऑप्शन हैगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चौथी ऑप्शन हैगी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो अपने वास्ते की इत्थे जिहड़ा हैगा पहली ऑप्शन ऑप्शन ए की है सही की करैक्ट हैगी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू की जिहड़ा हैगा सी गवर्नर ऑफ बंगाल नूं की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जान लग्या। अगे आप नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हैं बाय विच एक्ट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एबॉलिश द मोनोपली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द ट्रेडिंग ऑफ टी एंड शुगर। तो हम की जिहड़ा हैगा पुछ रहे हैं भी किहड़े एक्ट के थ्रू जिहड़ा हैगा सी ब्रिटिश गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी सी उन्होंने की है जिहड़ा हैगा सी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली मतलब कि एकाधिकार नूं खो लिया सी किस दे व्यापार लई चाह ते खंड के व्यापार लई शुगर के व्यापार लई। तो पहले ऑप्शन जिहड़ी हैगी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरी ऑप्शन हैगी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरी ऑप्शन हैगी चार्टर एक्ट 1813, चौथी ऑप्शन हैगी है चार्टर एक्ट 1833। ताकि इहदे अपने जिहड़ा हैगा फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833 वाला करैक्ट है। क्यों? क्योंकि इत्थे जिहड़ा हैगा सी इस एक्ट के थ्रू की हैगा सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोलों जिहड़ा हैगा सी ब्रिटिश क्राउन ने की जिहड़ा हैगा सी अधिकार खो लिया सी एक अधिकार खो लिया सी व्यापार का चाह ते शुगर का। अगे आप नैक्सट गल करते हैं नैक्सट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट discarded the diarchy system at the provincial level and allows for the emergence of popularly elected provincial legislatures। तो उनकी डायरकी किस चार्टर एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल लेवल मतलब कि सूबे लेवल तक की जी सरकार बनानी तो इनकी डायरकी क्या जाता है मतलब दो इकट्ठियाँ। तो पहली ऑप्शन हैगी है चार्टर एक्ट 1793, दूसरी ऑप्शन हैगी है मोंटेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स 1919, सी ऑप्शन जी है अपनी थर्ड ऑप्शन हैगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो फोर्थ ऑप्शन हैगी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इतने कि अपने जोड़ा है सी ऑप्शन जी है करैक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू की जोड़ा सी डायरकी सिस्टम की जोड़ा है डिसकार्ड किया गया मतलब कि उनकी मनाही की गई उनकी खत्म कर दिता गया। अगे आप नैक्सट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला बढ़ते हैं वैन द मॉर्ले मिंटो बिल वॉज पासड।
तो मोरले मिंटो बिल कदों पास होया? ऑप्शन ए की है 1905, ऑप्शन बी की 1909, ऑप्शन सी की 1919, ऑप्शन डी की 1920। तो इतने अपना की जड़ेगा ऑप्शन बी करैक्ट आंसर है। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਦ ਪੋਸਟ ਆਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬਾय ਵਿਚ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਫॉर ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਚਿਵ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, सैकेंड ऑप्शन हैगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, थर्ड ऑप्शन हैगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फोर्थ ऑप्शन हैगी मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो आज थे कि आपने जो है आंसर करैक्ट है 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਬਾय ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। तो ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 1909, दूसरी ऑप्शन हैगी 1919, तीसरी ऑप्शन हैगी 1935, चौथी ऑप्शन हैगी नन ऑफ दीज, मतलब इन्होंने विचों कोई भी नहीं। तो इतने कि अपनी थर्ड ऑप्शन जी है 1935 वाली करैक्ट हैगी है। अपना जोड़ा है फस्ट अटैम्प्ट कदों किया गया फैडरल बनाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू की है इंडिया की फैडरल संघी शासन प्रणाली संघी एक देश बनाने लिए की है इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। अगे गल करते हैं नैक्सट तो लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉज द फस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सॉरी गाइज इतने की है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखे गया, तो तुसी की जड़ा है इतने दसना है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सब तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी? तो पहली ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, सैकेंड ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड ऑप्शन है माउंट बैटन, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड कर्निंग। तो सब तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है। तो अपना की फस्ट ऑप्शन जी है करैक्ट आंसर है। तो तुसी की जो क्वेश्चन जस्ट इन्ना करैक्ट करना इंडिया की जगह तुसी बंगाल कर लेना। सो आई होप गाइज तुहाडे वास्ते जो लैक्चर जो है वैल्यूएबल होएगा। गाइज जेकर तुहानू किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हैगी तो तुसी की जो है कमेंट सैक्शन दस सकते हो, किसी तरह कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो तुसी वो भी दस सकते हो। तो गाइज हुण आपां जो है नैक्सट लैक्चर आपां लैके आवांगे डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स, कंस्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो आपां की नैक्सट जो लैक्चर है वो आपां करना है पार्ट 3 बारे फंडामेंटल राइट्स बारे मौलिक अधिकारां बारे। तो तुसी की जो है थोड़ा प्रिपेयर करना है। तो आपां नैक्सट लैक्चर लैके आवांगे एक दिन बाद, तो तुसी की जो है उस लैक्चर लिए प्रिपेयर रहना। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मिस्टर सिंह एजुकेशन। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय गाइज।